today we will discuss the next term or the terms. First one is the venous return, the next is preload, and the third one is afterload. Okay. First, I will briefly recap the previous lecture. Okay. In the previous lecture, we discussed end-diastolic volume and systolic volume, total peripheral resistance, and contractility, right? And diastolic volume, it is the volume of blood in the ventricles at the end of diastole, and its value is 120 ml. And systolic volume, it is the volume of the blood in the ventricle at the end of systole, and its value is 50 ml. Okay, so these two, and diastolic volume and systolic volume, can be used to calculate the stroke volume. Okay, if we minus end diastolic volume, we can measure the stroke volume from end diastolic volume and systolic volume, and if we minus the end systolic volume from end diastolic volume, we can get stroke volume, which is approximately 70 ml, right? Okay, next is total peripheral resistance. It is the resistance offered by the blood vessel against the flow of blood, right? Okay, and it can affect the stroke volume. And this total peripheral resistance is dependent on the vasodilation and vasoconstriction. If the blood vessels are going to be constricted, the total peripheral resistance will be increased, and if the blood vessels are going to be dilated, the total peripheral resistance will be decreased. And if total peripheral resistance is low, the stroke volume will be higher, and vice versa. Next is the contractility. Contractility is the strength of ventricular contraction, and it is dependent on majorly on sympathetic flow, or you can say sympathetic nervous system. Greater the sympathetic effect, greater will be the contractility, and greater will be the stroke volume. Greater will be the stroke volume. So this is the recap of the previous discussion. Next, today we are going to discuss venous return, preload, and afterload. Okay, venous return. What is venous return? I am going to write the definition. It is the return. It is the return of blood in atria, especially कौन सा atria? Right atria and right ventricle, right? It is the return of blood in atria and ventricle और इसमें है क्या? Right atria and right ventricle. Turn of blood in atria and ventricle, especially right atria and right ventricle, from superior vena cava and inferior वेना केवा. ठीक है, सारी सी बात है आप लोगों को पता है कि जब आपका ब्लड deoxygenate होके from cells it enters into the veins and ultimately from upper part of your body and from lower part of your body in superior vena cava and inferior vena cava respectively enters into the right atria and right ventricle is known as venous return. सारा ब्लड जो आपके inferior vena cava और superior vena cava से right atria और right ventricle में जाके पहुंच जाता है, उसको venous return कहते हैं. ठीक है, ओके. अब ये जो venous return है, ये जो venous return है, ये कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है. ठीक है, और वो सर्टेन फैक्टर्स हैं. वो क्या है? सर्टेन फैक्टर्स, दोज आर अफेक्टिंग द venous return. ठीक है, फर्स्ट वन इज द vasoconstriction, or you can say venoconstriction. ठीक है, फर्स्ट वन इज द फर्स्ट फैक्टर इज venoconstriction. आप लोगों ने याद रखनी है एक बात. आपको जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो क्या करता है? आपकी बेशक वो आर्टेरियल ब्लड वेसल हो, बेशक वो वेन्स वाली ब्लड वेसल हो, ठीक है, उनको कंस्ट्रिक्ट करता है, हमेशा ब्लड प्रेशर बढ़ाता है वेनस सिस्टम. ठीक है, तो क्या करते हैं आप लोगों के आर्टरीज को भी और वेन्स को भी हमेशा कंस्ट्रिक्ट करा के ब्लड प्रेशर को क्या करता है? ज़्यादा करता है. ओके, अब इसी तरह अगर आप लोगों की ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाए या वेन्स आपकी वेना केवा कंस्ट्रिक्ट हो जाए, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, तो जो वेनस रिटर्न है, मैं आप लोगों से पूछना, सारे फैक्टर्स मैंने आप लोगों से पूछने कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन वेनस रिटर्न. क्या होगा?
व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन वेनस रिटर्न, आप लोगों ने बताना है। बताएं सब लोग चैट सेक्शन में कि अगर हम वेन्स को कंस्ट्रिक्ट कर दें तो वेनस रिटर्न के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। जहर सी बात, ब्लड वेसल अगर कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो ज़्यादा तेज़ी के साथ ब्लड किधर मूव करेगा, सुपीरियर वेना केवा से भी और इन्फीरियर वेना केवा से भी किधर जाएगा अगर आपकी वेन्स कंस्ट्रिक्ट हो जाए, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कम। इधर देखो अल्लाह के बंदो, यस, इधर देखो, वेनस रिटर्न बढ़ जाएगा जब आपकी वेन्स कंस्ट्रिक्ट होंगी, जब आपकी वेन्स कंस्ट्रिक्ट होंगी, ठीक है, ऐसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आ रहा है ना, इधर वापस, ये यहाँ से आ रहा है वेनस रिटर्न वापस, इधर से आ रहा है वेनस रिटर्न वापस, और ऊपर से आ रहा है इन्फीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा से, ठीक है, जाहिर सी बात है। जब ये थोड़ी सी यहाँ से ऐसे कंस्ट्रिक्ट होगी, ठीक है, तो ज़्यादा तेज़ी के साथ आपका जो ब्लड है वो यहाँ से मूव करके और तेज़ी से एट्रिया से वेंट्रिकल में पहुँच जाएगा, ठीक है, जितनी ज़्यादा कंस्ट्रिक्शन होगी, ठीक है, उतने तेज़ी के साथ ब्लड आपको किधर चला जाएगा, एट्रिया और वेंट्रिकल में, और आपका वेनस रिटर्न बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ एक और भी बात है कि आपकी जो वेन्स होती हैं, लिसन एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी जो वेन्स होती है ना, वेन्स, हम इनको कैपेसिटेंस वेसल कहते हैं, क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस वेसल्स, ओनली वेन्स नॉट आर्टरीज, आर्टरीज के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती, आप लोगों ने हमेशा याद रखना। कैपेसिटेंस वेसल है, ठीक है, इनके अंदर ना ब्लड को रिटेन करने की एबिलिटी होती है, ठीक है, इनका ल्यूमेन बड़ा होता है, ये ब्लड को अपने अंदर रिटेन कर सकती है, इसलिए इनको कैपेसिटेंस वेसल कहते हैं। और अगर जैसे ही ये वेन्स कंस्ट्रिक्ट होगी, फौरन से जो ब्लड इन्होंने रिटेन किया हुआ है अंदर, क्योंकि इनको कैपेसिटेंस वेसल कहते हैं, तो जो रिटेन किया हुआ फौरन से किधर चला जाएगा, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के अंदर, और आपका जो वेनस रिटर्न है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, ये दो फैक्टर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट इज, थर्ड वन इज स्केलेटल, स्केलेटल मसल, क्या है, स्केलेटल मसल पंप, और से सुनिए ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्केलेटल मसल पंप, ये क्या होते हैं, आप लोगों को पता है, सारे मसल्स के अंदर, मसल के सेल्स हैं, ठीक है, उन सेल्स के अंदर आपको पता है सारी आपकी ब्लड वेसल्स फैली हुई होती हैं, क्या होती हैं, फैली हुई होती हैं, हर सेल के इर्द गिर्द आपको पता है एक सेल होता है, उसके बाहर वाली साइड पे आपकी आर्टरीज भी होती हैं जो कि उस सेल को ब्लड प्रोवाइड करती हैं, और फिर वहाँ से जो है वेन्स भी होती हैं। तो आपका जो स्केलेटल मसल है, आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है, स्केलेटल मसल के अंदर क्या होती है, एबिलिटी होती है टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, जो मैंने आप लोगों को स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाया था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब आपके स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो सारे जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो साथ ही अपने इर्द गिर्द मौजूद फैली हुई जो वेन्स होती हैं उनको भी क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, उनको भी क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से वो वेन्स क्या होती हैं, थोड़ी सी दब जाती हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, और फौरन से ब्लड उधर से भाग के किधर जाता है, इंफीरियर वेना केवा में और सुपीरियर वेना केवा में, और फौरन से फिर एट्रिया में और वेंट्रिकल। तो इस तरह अगर स्केलेटल मसल पंप या स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन बड़ी पावरफुल हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप लोग रनिंग कर रहे हैं, इट्स मीन दैट ऑन दैट टाइम योर स्केलेटल मसल आर वर्किंग वेरी हार्ड, आर इन द फुल टोन में होते हैं उस टाइम, फुल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और जब आप भाग रहे होते हैं जाहिर सी बात है उस टाइम आपका वेनस रिटर्न भी ज्यादा होता है, तो जो स्केलेटल मसल होती है उस टाइम बड़ा ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और साथ ही फिर वो उन वेन्स को भी जो उनके इर्द गिर्द फैली हुई होती है उनको भी कंस्ट्रिक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फौरन जो ब्लड होता है उनके अंदर, क्योंकि वेन्स आर दी कैपेसिटेंस वैसे, तो वहां से वो मूव करके किधर चला जाता है, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल में। तो इस तरह जो स्केलेटल मसल का जो इफेक्ट होता है वो भी इसके ऊपर क्या होता है, ज्यादा होता है, कि अगर ज्यादा स्केलेटल मसल की वर्किंग हो रही है, मतलब अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप कोई विग्रस एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उस टाइम भी आपका वेनस रिटर्न बढ़ जाएगा। जी क्वेश्चन आ गए, ये क्या कह रहे हैं, रेजिस्टेंस ब्लड को रेजिस्टेंस, ब्लड को रेजिस्टेंस, ये तो फिर एक मिनट मैं आंसर देता हूँ एंड पे, अभी मुझे आप लोग आंसर क्वेश्चन एंड पे किया करो। स्केलेटल मसल पंप से फिर क्या होगा, वो वेसल जो है ना वो सारा अपना ब्लड भेजेंगे इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, और राइट एट राइट वेना, इस तरह आपको वेनस टर्न बढ़ जाएगा। तो स्केलेटल मसल भी क्या करते हैं, वेनस टर्न को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज वेनस रिटर्न, वैलो कंस्ट्रिक्शन इंक्रीज वेनस रिटर्न, और कैपेसिटेंस वेसल में अगर ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो तो क्या होगा, वेनस टर्न बढ़ जाएगा। ओके नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज द ब्लड वॉल्यूम, इज द ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम। अगर जाहिर सी बात है आपका ब्लड वॉल्यूम, जो टोटल आपके अमाउंट ब्लड की अमाउंट है आपकी बॉडी के अंदर, जो मेरे स्टूडेंट्स उनको पता होगा, आप लोगों को मैंने बताया था कि इतना प्लाज्मा होता है, इतना एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, इतना इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, इतना इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है। जाहिर सी बात है ब्लड वॉल्यूम बेसिकली प्लाज्मा के अंदर जो सारा कंटेंट होता है ब्लड का उसको कहते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर आपका ब्लड वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका वेनस रिटर्न भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जितनी अमाउंट ज्यादा होगी ब्लड की आपकी बॉडी में, उतना ज्यादा ब्लड सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से होता हुआ किधर चला जाएगा, राइट राइट वेंट्रिकल में, डेफिनेटली योर वेनस रिटर्न विल बी इंक्रीज, इट्स मींस दैट greater the blood volume,
greater will be the venous return. Venous return. Okay. Next is the effect of gravity. Fifth point. Effect of gravity. Effect of gravity. ठीक है, अब यहाँ से गौर से बात देखना लोगों ने, राइट? ओके, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. या लिसन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Greater will be the effect of gravity on the blood pooling. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग बताता हूँ. अगर आप, इफ वन पर्सन इज स्टैंडिंग और अदर पर्सन इज लाइंग डाउन, एक बंदा लेटा हुआ एक बंदा खड़ा हुआ, एक पर्सन है वो खड़ा हुआ, एक बंदा वो लेटा हुआ. ठीक है, तो जो लिसन, हमेशा बात याद रखनी, जो बंदा खड़ा हुआ होगा ना, उसके ऊपर ग्रेविटी, उसके ब्लड के ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट ज्यादा होता है. क्योंकि देखो, जो आर्टरीज होती हैं वो, देखो और से बात सुनिए, आपका हार्ट होता है ऊपर वाली साइड पे. ठीक है, मतलब कि हार्ट हेड के करीब करीब होता है. तो जब हार्ट वहां से पंप करता है तो ब्लड जो है वो किधर जाता है? फॉरेन से आर्टरीज में. और आपका जो ब्लड से नीचे वाला एरिया होता है वो ज्यादा है. ठीक है, कि उसका एरिया ज्यादा है और हेड से ऊपर कम है. क्योंकि अगर हम करें ना उसको डिस्ट्रीब्यूट, तो आपका दिल जो है ना वो ऊपर वाली साइड पे ज्यादा है और नीचे वाली साइड पे कम है. मतलब कि बॉडी के हिसाब से अगर हम उसको लेंथ वाइज डिवाइड करें, तो जब ब्लड वहां से पंप करता है तो फौरन ब्लड आर्टरीज में जाता है. ठीक है, और आर्टरी से होते हुए अब उसने वापस जाना है वेन्स के जरिए से ऊपर. और वेन्स तो आप पाँव से भी ब्लड लेंगी, नीचे वाले पोर्शन से भी ब्लड लेंगी. तो यहाँ पे ग्रेविटी का भी इफेक्ट पड़ रहा होता है. किसके ऊपर? वेनस रिटर्न के ऊपर. क्योंकि वेनस रिटर्न होता है वेन्स के जरिए से. अब उसने नीचे से ऊपर की तरफ जाना है. अब वेन्स के जरिए से ब्लड ने क्या किधर जाना होता है? नीचे से ऊपर की तरफ. दिल तो ऊपर है, वेन्स तो नीचे है. तो अब यहाँ पे ग्रेविटी का भी इफेक्ट होता है. किसके ऊपर? वेनस रिटर्न के ऊपर. इट्स मीन्स दैट greater will be the effect of gravity on the blood in the veins, lesser will be the venous return. It means that अगर ग्रेविटी का इफेक्ट ज्यादा होगा तो आपका जो वेनस रिटर्न है वो कम हो जाएगा. और अब ग्रेविटी का इफेक्ट कम होगा तो वेनस रिटर्न क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. वेनस रिटर्न क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. अगर आप लोग लाइंग डाउन पोजीशन में है तो फिर जो ग्रेविटी का इफेक्ट होता है वो कम होता है. क्यों? क्योंकि आपका दिल और आपकी जो ब्लड वेसल है नो आर एट द सेम लेवल, अब सेम लेवल पे हैं. तो अब थोड़ा सा ग्रेविटी का जो इफेक्ट होता है वो कम आता है. अब आपका वेनस रिटर्न भी थोड़ा सा बढ़ सकता है. ठीक है, लेकिन अगर आप खड़े हैं, ठीक है, तो इफेक्ट, ग्रेविटी का इफेक्ट ज्यादा होगा. ठीक है, तो ज्यादा होगा. ग्रेविटी का इफेक्ट ज्यादा होगा तो वेनस रिटर्न कम होगा. ग्रेविटी का इफेक्ट कम होगा तो वेनस रिटर्न क्या होगा? ज्यादा होगा. सो दीज आर द फैक्टर्स दैट आर गोइंग टू अफेक्ट द वेनस रिटर्न. अल्टीमेटली जब वेनस रिटर्न ज्यादा होगा तो आपका जो stroke volume है वो भी ज्यादा होगा. डेफिनेटली ग्रेटर विल बी द फिलिंग ऑफ द ब्लड बाय द वेनस रिटर्न. डेफिनेटली ग्रेटर विल बी द स्ट्रोक वॉल्यूम. ज्यादा ब्लड की फिलिंग होगी ड्यूरिंग डायस्टोल तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज प्रीलोड. This and I remember, this preload is also called as end diastolic pressure. End diastolic pressure. ये बेसिकली एक प्रेशर होता है. प्रीलोड प्रेशर को कहते हैं. प्रीलोड किसको कहते हैं? प्रेशर को. कौन सा प्रेशर है? वो ब्लड जो वेनस रिटर्न के जरिए से राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है. वो जाहिर सी बात है ब्लड फ्लूइड है और ये जिस ऑर्गन में होगा, जिस चैम्बर में होगा, वहां पे ये प्रेशर लगाएगा. तो वो प्रेशर जो ये लगाता है उसको प्रीलोड कहते हैं. अब मैं इसको डिफाइन करने लगा. प्लीज स्विच ऑफ योर माइक्स एंड कैमरास. ओके, इट इज द प्रेशर, it is the pressure, it is the pressure that is exerted, that is exerted by blood blood on the walls of right ventricle. Right ventricle. It is the pressure that is exerted by blood on the walls of right ventricle is preload. Is preload at end of diastole. राइट. अच्छा, अब गौर से सुनिए ये बात. कल हमने पढ़ा था एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम. क्या पढ़ा था? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम. बिल्कुल बिल्कुल ये इसी से रिलेटेड है. प्रीलोड ये एक बेसिकली प्रेशर होता है. इसको हम प्रेशर, हमेशा प्रीलोड को हम एक प्रेशर कंसीडर करते हैं. ठीक है, और ये किस पे डिपेंडेंट है? ये डिपेंडेंट है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम पे. किस पे डिपेंडेंट है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम पे. एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो किस पे डिपेंडेंट है? वेनस रिटर्न पे.
वो किस पे डिपेंडेंट है? वीनस रिटर्न पे। तो मैं अभी लिखता हूँ प्री लोड, किस पे डिपेंड कर रहा है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम पे। और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम पे किस पे डिपेंड कर रहा है? वीनस रिटर्न के ऊपर, राइट। तो जितना वीनस रिटर्न ज्यादा होगा उतना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा होगा, और जितना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना प्रीलोड ज्यादा होगा, और जितना प्रीलोड ज्यादा होगा उतना आपका स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा। उतना आपका जितना जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा उतना आपके वेंट्रिकल ज्यादा फोर्स लगाएंगे और उतना आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है। सो this is all about the effect of venous return and preload on the stroke volume. So we can say that venous return and preload both are directly proportional to the stroke volume. Greater will be the venous return and preload, greater will be the stroke volume, and vice versa. Now it's time for question and answer session.